So in previous class we have already seen what is reproduction, why it is necessary, and what will happen if the species or the individual will not reproduce, then what things may happen and its importance. Now everything we have seen and whatever we have discussed, it is all about the importance of reproduction, but we should know that how the organisms reproduce. So what are the various ways by which the living organisms can reproduce the younger ones, right? So it means, first of all, basically we need to classify it, the types means we need to classify the reproduction into its two types based on the sex organs involved or not. So there is a particular scenario in which the sex organs are not present in certain kind of organisms, but still they have the ability to reproduce like their own species, like their own younger ones. So based on this, we have classified the reproduction into two categories. Reproduction or types of reproduction or methods of reproduction has been classified basically into two categories. One is called asexual methods of reproduction, or simply asexual reproduction, and another is sexual reproduction, right? So what's the basic difference? In one of the method, the sex organs will not be there to reproduce their younger ones from the existing ones, but still they will be having the capability and ability to reproduce their offsprings, right? So such type of reproduction in which the sex gametes, sex organs are not present and they have the ability to reproduce their offsprings is called asexual, while that mode of reproduction in which certain sex organs, certain parts should be there, then and then they can reproduce their offsprings, that means their younger ones. This is called what? Sexual reproduction. तो बेसिक मीनिंग समझ में आ गया कि असेक्सुअल में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होंगे, फिर भी इनके पास वो एबिलिटी होगी कि वो अपने से अपनी नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सके. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है जो मोस्ट ऑफ द जो हमारी सराउंडिंग में होता है, चाहे वो किसी भी एनिमल की बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए, तो उनमें एक पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू ही ऑफस्प्रिंग्स को, आने वाली नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, असेक्सुअल के क्या क्या. अच्छा, इन जनरल जो असेक्सुअल मेथड्स होते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज फाउंड इन जनरल इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स. इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स. सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब इन जनरल है ना, मोस्ट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब दे मे बी यूनिसेलुलर, दे मे बी मल्टीसेलुलर, लेकिन दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर. सिंपल मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर तो सिंपल होते ही हैं, और मल्टीसेलुलर अगर हैं तो वो कैसे होंगे? सिंपल. यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं होगी कि बहुत सारे इधर हाथ दिख रहा है, इधर पांव दिख रहा है, इधर आंखें दिख रही है, नोज दिख रही है, चिन दिख रही है, हेड दिख रहा है, मतलब सो मेनी हार्ट, सो मेनी ऑर्गन्स विल नॉट बी देयर. ठीक है, सिंपल बॉडी डिजाइन. तो सच काइंड ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and unicellular organisms shows asexual reproduction. Even certain kinds of plants also shows asexual. Also means most of the plants will be showing sexual reproduction, and most of them or some of them will show the asexual reproduction. तो इनको भी कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स किन मेथड्स में, एसेक्सुअल में भी क्या एक स्पेशल, यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट से, या हम बोलेंगे कि स्पेशल वेज हैं
जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये वाले ऑर्गेनिजम्स जनरली इस तरह से ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह की मेथड से, इस तरह के असेक्सुअल मेथड से नई ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन वेज इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इसको भी क्लासिफाई करने वाले हैं, एंड दैट वी कैन क्लासिफाई। सो क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल मेथड का? सबसे पहले आता है फिजन। फिजन, ठीक है। फिर आता है आपका बडिंग। फिर का मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब इन जनरल है कि क्या क्या मेथड्स पॉसिबल है, उन मेथड्स को इन जनरल हम लिख रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जर्नल मेथड्स जिनको ऑब्जर्व किया है। बायो में मैक्सिमम चीजें उस हिसाब से चलती है जो चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, ना कि वाई पर, है ना। बायो के अंदर मैक्सिमम चीजें ये, या इवन केमिस्ट्री के अंदर भी मैक्सिमम चीजें इन बेसिस पे चलती है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या उसकी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू रिजल्ट निकाला और क्या हो रहा है। उसमें ज्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं हो पाती, और उन्हीं बीच में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा आते रहते हैं कि आपने कुछ देखे कि यार 10 में ऑब्जर्वेशन फिट बैठ रही है और आपको सडनली लगेगा कि 11th के अंदर वो उस पर फिट नहीं बैठ रही, फिर भी आप उसको उसी कैटेगरी में रखने की एक मजबूरी हो गई ड्यू टू सर्टेन ट्रेट्स आर शोइंग दोज कैरेक्टरिस्टिक एंड सर्टेन आर नॉट, तो उसको कहाँ रखे। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सो बायो इन केमिस्ट्री इज मैक्सिमम ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ सर्टेन वेज की बात कर रहे हैं। ये जो सीक्वेंस नहीं है, वेज लिख रहा हूं मैं, है ना, जस्ट नंबरिंग देनी है, इसलिए ऐसा नहीं है पहले फिजन होगा फिर बडिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो फिजन हो गया, बडिंग हो गया, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, आपका मतलब ऑर्गेनिजम्स, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। रीजनरेशन, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन, एंड वेजिटेटिव फॉर्मेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट का मतलब फिजन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिजन भी बेसिकली दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे, अभी वन बाय वन सभी कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। और इसी तरह से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये भी ऑलमोस्ट 3 टाइप से हो सकता है। क्या? एक हो सकता है कटिंग, एक होता है मेथड लेयरिंग, लेयर बनाना, लेयरिंग रिप्रोडक्शन मेथड, कटिंग, और एक कहलाता है ग्राफ्टिंग। अभी इनको वन बाय वन समझते हैं और फिर फिजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द असेक्सुअल मेथड, है ना। ये सब कुछ हमें असेक्सुअल में पढ़ने हैं, यही कुछ आपका सिलेबस में है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मेनली 2 में ही देखना है, इन प्लांट्स एंड एनिमल, और उसमें भी जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आएंगी वो आपकी ह्यूमंस में ही आएगी। तो इन प्लांट्स, और मैं इसलिए एनिमल्स ना लिख करके इन ह्यूमन लिख रहा हूं, सो इन ह्यूमंस, ठीक है। सेक्सुअल के अंदर फिर इनके अंदर वेरियस बताया कि यहाँ पर कुछ सेक्स गैमेटीज होनी चाहिए, सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए वो फिर डीप के अंदर हम इस मेथड को देखेंगे। अभी पहले हम असेक्सुअल से स्टार्ट करते हैं ताकि वन बाय वन इन चीजों को समझा जा सके। हाँ भाई, फिजन का मतलब ठीक वैसे जैसे आपने 9th ग्रेड के अंदर चैप्टर पढ़ा था, आई गेस, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें था आप लोगों के क्या, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, यस और नो? फिजन था, यस सर। फिजन का व्हाट वाज द मीनिंग? मैंने कुछ मीनिंग बताया था आप लोगों को कि फिजन का मीनिंग क्या होता है,
टू ब्रेक, टूटना, टूटना, ब्रेक होना। तो फिजन का मतलब यहां पे भी वही है, फिजन मींस ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसका मतलब फिजन एक ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने खुद को ब्रेक कर लेगा, स्प्लिट हो जाएगा और नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि अपने खुद को तोड़ करके नए ऑर्गेनिजम्स को बना देना ही क्या है, फिजन, ठीक। अब इसमें फिजन भी हम दो टाइप के बोल रहे हैं, एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। तो भाई कहीं पे भी बाई आ जाए तो उससे झाड़ू पोछा लगवा लेना, बाई आ जाए का मतलब, बाई है तो बाई का मतलब है टू, टू, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या हो गया, टू पार्ट्स में स्प्लिट होना। फिजन का मतलब ब्रेकिंग। सो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये खत्म हो चुका है भाई, अभी इसका पार्ट नहीं है ना, अभी इधर का चल रहा है सब कुछ। स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म into two new organisms। ये भी बिल्कुल बेसिक मीनिंग समझ रहे हैं। मल्टीपल के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अभी फिर स्टार्टिंग से वापस से इनको डिटेल में करेंगे, अभी बस नॉर्मल मीनिंग बता रहा हूं। बडिंग का मतलब एक बडी क्या होता है, जो हमेशा कुछ आपके साथ रहे, है ना। ही इज माई बडी वो है ना कि ही इज माई टेडी बियर को कोई लोग बैट बडी बोल देते हैं, ही इज माई बडी। कुछ लोग अपनी पेंसिल को बोलते हैं दिस इज माई बडी, इट ऑलवेज स्टे विद मी। तो बडी मतलब आपकी कोई चीज साथ में रहे, आपके मतलब ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, मैं भी यहाँ शेप नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस शेप को हम अभी बाद में बनाने वाले हैं। तो उसके पास क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट ग्रो करता है बॉडी पर, कहीं पर छोटा सा पार्ट। तो वो जो छोटा सा पार्ट है जो उसके साथ हमेशा रहेगा जब तक कि रिप्रोडक्शन ना हो जाए। तो जब तक है इसमें जान तब तक रहेगा ये, इसको बोला जाएगा बड। और ये जब आगे धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा तो ये बडी इस बडी से अलग हो जा करके एक नई ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आ चुका होगा और ये खुद का एक नया बडी ढूंढेगा और इसको इसी की बॉडी पर नया बडी फिर से मिल जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। सो ऐसा कुछ मेथड होता है बडिंग का। और स्पोर फॉर्मेशन, पोर्स क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी होल्स। तो वैसे ही है स्पोर्स का मतलब बहुत टाइनी पार्टिकल्स। टाइप ऑफ प्लांट की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे, सो बहुत माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स जो हवा में चारों तरफ हैं, जिनको आप देख नहीं सकते। और उनको अगर कोई फेवरेबल, उनके अकॉर्डिंग उन स्पोर्स what are spores, those tiny particles of a certain species of plant which has the ability to reproduce by staying on something, either on plant or animal or some organic materials, to develop or to reproduce another plants belonging to the same species from them, ठीक है। तो स्पोर्स वो टाइनी पार्टिकल्स हैं जो किसी प्लांट की पर्टिकुलर स्पीशीज का एक पार्ट है और उनके अंदर एबिलिटी है कि अगर उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, मान लीजिए किसी को पानी चाहिए तो पानी, किसी को गर्मी चाहिए तो गर्मी, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, पोटैटो चाहिए, सब्जी रोटी कुछ चाहिए, उनके ऊपर जाकर के वो गिर जाते हैं और वहीं पे नए प्लांट्स अपनी स्पीशीज के जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। कैसे होगा वो सब डिटेल में, अभी सबका एक बात बेसिक मीनिंग, बेसिक रिव्यू, ताकि हर एक के बारे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता रहे। रीजनरेशन, है ना, रीजनरेशन। अब रीजनरेट करना, नाम से पता चल गया रीजनरेट, तो कि सर रीप्रोड्यूस और रीजनरेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है साहब। डिफरेंस है रिप्रोड्यूस के अंदर, तो हम बोल रहे हैं अपनी पूरी एनर्जी लगा करके एक ऑर्गेनिज्म
एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, खुद से मेहनत कर रहा है। रीजनरेट के अंदर अपने आप ऑर्गेनिज्म जनरेट होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनको भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए। क्या सिचुएशन चाहिए सर? सिचुएशन ये चाहिए साहब कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको आप काट दो, मारना नहीं, काटना है, काट दो, खच 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 खच, तो वो जितने काटोगे उतने ही नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे जनरली। तो फिर सर इनमें भी तो ये हो रहा है, मल्टीपल फिजन में भी तो हो रहा है, इनमें ये खुद कर रहे हैं, पेरेंट खुद कर रहा है। ये वो जो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि ये खुद अपने आप को तो नहीं काट रहे, लेकिन कोई आया और इनको काट के चला गया, तो जितने बार उसने काटा है वो उतने ही नए बन जाएंगे। दीज आर, एक वर्ड बता रहा हूं आपको इसके लिए, रक्त बीज। अगर आप लोग नवरात्रे आने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि माता दुर्गा ने एक राक्षस को वरदान था कि कोई उसको मार नहीं सकता था, इसलिए नहीं मार सकता था कि वो जो रक्त बीज नाम का जो राक्षस था, उसको कहीं से भी काट दो तो उसकी जितनी रक्त, ब्लड की जितनी ड्रॉप्स गिर जाएंगी उतने ही नए रक्त बीज बन जाएंगे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितनी ब्लड की बूंदें गिरेंगी उतनी एग्जैक्टली रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। कुछ कुछ वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा, रक्त बीज जनरली उसमें उसको चाहिए तो खुद को काटेगा ना, लेकिन उसको पता है कि मैं अपने आप को क्यों काटूं, क्योंकि अगर सामने वाला काटेगा मुझे तो भी तो अपने आप बन जाएंगे, तो भैया मैं अपने आप को क्यों काटूं? खुद सोचो, आपको पता हो कि कोई मुझे काटेगा तो वैसे ही वापस और वो की वही चीजें, और उनको सबको हर चीज पता होगी, हर चीज जो मुझे पता है, मुझे किसने काटा, क्या करा, क्या हुआ, वो कि वही इतने सारे और डेवलप हो जाएंगे। 5 बूंदे, 5 ड्रॉप गिरी, 5 रक्त बीज पैदा होगा, उन सबको सब कुछ पता है। तो क्या वो रक्त बीज खुद को काटने की कोशिश करेगा? वो टेंशन फ्री रहता था, भैया मुझे जरूरत नहीं है। दुर्गा माता ने क्या क्या हो गया पता ही राक्षस के बारे में तो सबको, उन्होंने सब जो वो राक्षस था उसने कि नहीं, हम मेरे को तो स्वर्ग चाहिए, और इंद्र से लड़ाई कर ली। और इंद्र के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, कुछ भी होते ही वो भागे भागे फिरते थे, या तो विष्णु जी के पास या शिव जी के पास, है ना, या ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम कुछ तो कर दो हमारा राम। तो वो करते करते भैया क्या करें, ये तो वो जितने मारते हैं उतने बन जाता है, ये तो अकेला ही खुद की सेना है, अकेला आता है और साथ में सेना लेकर के खुद की जाता है, अब हम क्या करें? तो दुर्गा जी आए, उन्होंने उसका वो जो पकड़ी भी रहती है ना मुंडी, और हाथ में एक प्याला रहता है, एक हाथ में प्याला और उसकी मुंडी, वो गिरने ही नहीं दिया जमीन पर ब्लड, तब जाकर के वो पूरा खत्म हुआ। सेम कॉन्सेप्ट रीजनरेशन है। रीजनरेशन के अंदर ऐसे क्या गला दबा के मार देते, गला दबा करके मारने से कुछ नहीं हो रहा था ना, गला दबा करके मार दो, सांस ले लो, ये पुराने टाइम की बातें हैं कि जिसके अंदर गला दबाने के लिए क्या वो ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा क्या? आ जाओ, मैं तो गांधी जी हूं, तुम मेरे एक थप्पड़ मारो, मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा। मतलब तुम गला दबाओगे, वो कुछ नहीं करेगा, करेगा सर, है ना? ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी। और मतलब वो भी राक्षस, तो मतलब ऐसी हर कोई आकर के उसका गला दबा जाएगा क्या? वो फिल्मों का सीन थोड़ी चल रहा है कि तकिया लगाकर उसका दम घोट दिया, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? रीजनरेशन वही चीज है, रीजनरेशन रक्त बीज, है ना, रीजनरेट रक्त बीज, ठीक, नाम याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, अच्छा, अब ये भी कुछ कुछ उसी तरह के का है, थोड़ी सी इसकी कहानी अलग है। ये फ्रेगमेंट हो जाता है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो क्या होता है, ये जब ग्रो होते हैं कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अपने आप को मैच्योर होने के बाद खुद से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड होने के बाद खुद से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी हो रहा है होने को, इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये इसके अंदर कुछ छोटा अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक सर्टेन फेवरेबल सिचुएशंस के अंदर
ये सिचुएशन पाई जा रही है कि वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स में एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी, जैसे मान लीजिए ये चीज नजर आ रही है आपको, यहां पर आकर के एक रिंग बनी और ये कैप है, फिर एक स्ट्रक्चर यहां से मान लीजिए ये वापस स्टार्ट हो रहा है, अब इसके बाद इसकी सेकंड रिंग यहाँ पे बन रही है ना, यहाँ पे बन रही है मान लीजिए, तो ये जैसे ही ये फुल मैच्योर हुआ ये अपने आप को अलग कर लेगा। ये एक पूरा फ्रेगमेंट अलग हो गया, एक फ्रेगमेंट। ये नाम कहाँ से आया, जैसे आपने देखा होगा, मतलब ये नाम वहां से नहीं है, वहीं से ये नाम आया जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे कंप्यूटर पीसी के अंदर आपने देखा होगा कि वी हैव टू डू द फ्रेगमेंटेशन टू अरेंज द फाइल्स लाइंग इनसाइड द कंप्यूटर। अगर आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है तो कंप्यूटर या पीसी के बारे में, कि पीसी वगैरह जो स्लो डाउन हो जाते हैं, हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर सी फाइल के अंदर डिवाइस मैनेजमेंट में एक ऑप्शन होता है डिस्क फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंटेशन। तो फाइल्स इधर उधर बिखरी पड़ी होती है, तो वो क्या होती है, मेमोरी को कंज्यूम करती है, तो उसको हम क्या करते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं, वापस से एक साथ कंटिन्यूटी में लाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डीफ्रेगमेंटेशन करना, वापस बनाना, ताकि सब कुछ कंटिन्यूटी में आ गई, तो कुछ भी डेटा को कंप्यूटर को जो रीड करना पड़ता है उसको मेमोरी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती। तो खैर, फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशंस आने के बाद अपने आप का टूट जाना, ठीक, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है, वेज, वेज है तो किस चीज की बात चल रही है, वेज है तो किस चीज की बात चल रही है, फ्रूट्स वगैरह, प्लांट्स की, प्रॉपर फ्रूट प्लांट्स वाली चीजों की। यस सर, है ना। लेकिन अभी तो हमने कहा कि भाई प्लांट्स तो सेक्सुअल करते हैं, तो फिर ये इसमें कैसे आ गया, क्योंकि आपने बाकी के प्लांट्स भी तो इसमें बता दिए, अब इसमें सारे पेड़ पौधे जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब इसमें डाल दोगे, नहीं। हम ये बोल रहे हैं वो सभी मेथड्स जिसमें सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट ना होकर के रिप्रोडक्शन किया जा सके किसी भी वे में, दैट इज कॉल्ड द असेक्सुअल मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा कि मैंने ये एक फ्रूट की स्टेम ली, दूसरे फ्रूट की स्टेम ली, उन दोनों को आपने वीडियोस वगैरह भी काफी देखे होंगे, आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रहते हैं, उनको रैप कर दिया, गाड़ दिया, तो इसके अंदर दोनों के ट्रेट्स आ जाते हैं, है ना। मतलब एक ये वन ऑफ द फ्रूट है, दूसरा फ्रूट है, तो उसके अंदर दोनों के ट्रेट्स आ जाएंगे, या गुलाब का एक फूल रेड कलर का, एक व्हाइट है, तो इन दोनों के ट्रेट्स मिलकर के एक पिंक टाइप का, पिंक रोज वगैरह इस तरह के डेवलप हो जाएंगे, दो चीजों के ट्रेट्स आ जाते हैं। बिना सीड्स के रिप्रोडक्शन करना, सीड्स आर द मेन ऑर्गन, मेन सेक्स ऑर्गन इन द प्लांट्स, है ना। बिना सीड्स के इसको हम क्या करवा रहे हैं, रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो वो सभी मेथड जिसमें बिना सेक्स ऑर्गन, एक्चुअल सेक्स ऑर्गन का यूज किए, इन पर्टिकुलर 3 मेथड्स के थ्रू हम प्लांट को ग्रो करवाएंगे, फ्रूट्स और जो भी उसके पार्ट्स रिक्वायर्ड है उनको ऑब्टेन करने के लिए, उनको बोला जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स, ठीक है। सो दीज थिंग्स वी नीड टू स्टडी। आई गेस मैक्सिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, है ना। यस सर, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर ये ठीक वैसा है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कि आप, एक और एड चलता है आजकल अक्षय कुमार का कि सर योर क्लोन इज रेडी, यू मे टेस्ट। यस सर, अभी नया है ना, तो $1 का Yes, एड चलता है, क्या फाट। यस सर, तो वो जो क्लोन बना, क्या उसमें अक्षय कुमार ने अपने किसी सेक्स ऑर्गन का यूज किया? नहीं, क्लोन, है ना। तो बिना एक्चुअल सेक्स ऑर्गन्स का यूज किए नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, asexual reproduction. So how many of you got all these methods?